નામ શું? આપ કયા ગામથી આવો છો અને અહીંયા શું શીખવાડો છો? હું વડલથી આવું છું. મારું નામ દિવ્યા છે અને અહીંયા છોકરીઓને સિલાઈ ક્લાસીસ શીખવાડું છું. બ્લાઉઝ અને ડ્રેસ અને પહેલાં સાદા શીખવાડે છે પછી ડિઝાઇનવાળા. શું તકલીફ પડે શીખવાડતા સમયે? ઘણાને મેજર ટેપ ન સમજાય, ઘણાને સમજાઈ જાય, ઘણાને કટિંગ ન આવડે, ઘણાને જલ્દી કટિંગ આવડી જાય, કોકને ગાંજ બટન ન આવડે, હુકાઈ ન આવડે, કોકને જલ્દી આવડી જાય. એવી રીતના અલગ અલગ. ને કોઈકને તો 10 વાર ગઈ તો એ ન ખબર પડે તો ન પડે. તો એ વખતે શું કરો? પછી થોડી વાર શાંત થવા માટે છૂટા મૂકી દેવી. પછી એને એમ થાય કે નહીં હવે મારે જાતે શીખવું છે, સામા લઈને આવે કે અમને શીખવાડો તો શીખવાડો. નહીં તો એકાબીજા છોકરીઓને કહે તમે કહો છો તમને સમજણ પડે, કોકના દ્વારા મારા દ્વારા ન પડતી હોય તો એકાબીજા કહે તો ખબર પડી જાય. તો એમાંય ન થાય તો પછી થોડો ટાઈમ 1-2 દી રેસ્ટ આપી દેવી. કે પછી એને એમ લાગે કે નહીં હવે મારે શીખવું, મનથી જ શીખવું છે, ત્યારે આવે તો પછી મગજ શાંત થઈ ગયું તો શીખવાડ્યું ફરીથી. ઓકે, તમે અહીંયા કેટલા ટાઈમથી શીખવાડવાનું શરૂ કર્યું? 17 મહિનો થશે. તો 1 મહિનાનો તમારો અનુભવ કેવો રહ્યો શિક્ષક તરીકેનો? આવડી જાય. ઘણાને એક જ વાર કહેવું પડશે ને ઘણાને 10-10 વાર કહેવું પડશે. ઘણા સાંભળે, ઘણા ના સાંભળે. એમ કે આમાં શું બ્લાઉઝમાં મહેનત કરશું, આમાં સેમ્પલમાં શું બનાવવાનું. જો સેમ્પલમાં જ મહેનત નહીં કરે તો બ્લાઉઝમાં ક્યાંથી સરખું આવવાનું છે? તમે કેવી રીતે શીખ્યા? સાદા બ્લાઉઝના માપ ઉપરથી શીખી, મેજર ટેપ ઉપરથી હું નથી શીખી. અહીંયા આવીને મેં મેજર ટેપ પાયલ દીદી આગળથી શીખી છે અને મને આવડી પણ ગઈ છે મેજર ટેપ. તો તમે એવું માનો છો કે તમને એક ફાયદો થયો? હા, મને મેજર ટેપથી આવડી મને બહુ ખુશી થઈ. અને બાકીના લોકોને મેજર ટેપમાં હવે તમે શીખવાડો તો તમને કંઈ તકલીફ પડે? નહીં પડે. મને પહેલાં એવું લાગતું હતું કે કોઈ દિવસ મેજર ટેપ નહીં શીખી શકું, પણ અહીંયા આવીને હું શીખી ગઈ. એટલે શિક્ષક તરીકે તમારી અંદર એક બદલાવ આવ્યો. ઓકે, બીજું અહીંયા જે વિદ્યાર્થીઓ આવતા હોય એ હિન્દી ભાષી હોય, ઘણાની બીજી ભાષા હોય, ગુજરાતી પણ હોય, આદિવાસી એરિયામાંથી આવે, તો ભાષાકીય રીતે પ્રોબ્લેમ થાય શીખવાડવામાં? હા, થોડી થાય, પણ હું ગુજરાતી છું તો નોર્મલી આ ગુજરાતી છોકરી છે તો અમુક વસ્તુ ન સમજાય તો મારે ગુજરાતી બોલવું પડે. તો ઘણી છોકરીઓ એમ કે દીદી શું વાત કરે, શું અમારી કરે એમ કર્યા કરે છે. તો થોડી પ્રોબ્લેમ થાય અને થોડી પ્રોબ્લેમ થાય અને પોતાની લેંગ્વેજ છે ડાયરેક્ટ કાંઈ છોડી તો ન હોય કે નીકળી તો જાય તે મોઢામાંથી. સ્ટાઇલ જે છે વાત કરવાની, ગુજરાતીવાળાને ગુજરાતીમાં બોલવાની સ્ટાઇલ હોય, હિન્દીવાળાને હિન્દીમાં. આદત તો કાંઈ જલ્દીથી છૂટે ને એટલે વાર લાગશે મારે તો થોડી. आपका नाम क्या है? आप कौन से राज्य से आए हैं और अभी क्या सीख रहे हैं? मेरा नाम बनीता समाली, मैं उड़ीसा से आई हूँ और मैं इधर ब्लाउज सीख रही हूँ. 1 महीना हो गया है मेरा. और अभी हमारी कटिंग पहला हम लोग को पेपर से सिखाया जाता है. तो पेपर से हमारे 29 का कटिंग है इसमें और हर कटिंग है इसमें. ओके, जैसे हम लोग ये कटिंग से और कपड़ा कटिंग कर सके अच्छे से, तो उनके बाद में हम लोग कापड़ से ये कटिंग किए हैं. भी सादा सिलाई कैसे गाज के बटन कैसे लगाने होगा, कैसे गाज के घर लगाने होगा, कैसे हुक लगाने होगा, हुक का घर कैसे करने पड़ेगा, और कैसे हम लोग को डिजाइन थोड़ा कैसे अच्छा डिजाइन आएगा, कस्टमर हमारे के पास में आएंगे, कैसे चाप के सिलाई ये सब. और हमारे अभी कटिंग हुआ है 4, 5, 6 कटिंग है. जो कटिंग हमने किए हैं ये कटिंग अभी जैसे चौरस की गला है और हमने ये सीखा, बस 1-2 बता के पूरा कर देना, लंबा नहीं. तो ये कटिंग और ये चौरस के गला है और ये गोल डीप गला है और ये भी एक गला है गोल के और ये भी गला है. ओके, वहाँ पे रख दो. ठीक है. और ये भी एक डिजाइन है हमारे भी सेप कोना सेप गला है. तो ये क्या किया है? बड़ा सुंदर लग रहा है डिज़ाइन. ये हमारे गाज बटन के हैं. अच्छा, इसमें हम लोग प्रैक्टिस किए हैं. तो आपको लगता है कि आपको अच्छे से आ गया है अब गाज बटन? बहुत अच्छे से आगे हैं ये. पहले नहीं आ रहा था तो प्रैक्टिस के बाद में इसको बनाए हैं हम लोग. तो ये गाज बटन का घर है. ओके, तो आप मुझे बताइए कि जब पहले आप आए और तब आपको बोलते हैं कि बारी बारी करना है ना, तब कैसा लगता था?
तो जब मैं पहला आया मुझे तो बहुत तो एक्साइटमेंट थी। जब उड़ीसा से आए थे तो फिर 2-3 दिन के बाद मुझे अच्छा ये बिल्कुल भी नहीं लगा, क्योंकि सब जितने बच्चे हैं हमारे से जूनियर है, हम सीनियर थे, तो इसीलिए तो फिर हम थोड़े मतलब मेरा माइंड सेट करने के लिए मुझे 7-8 दिन लगा। तो फिर माइंड सेट हो गया है हम कैसे रहेंगे, और घर भी है, हम समाज में भी कुछ काम करते हैं तो समाज भी हमारे साथ में है। तो फिर भी सब कुछ छोड़ के आए हैं तो हम लोग को थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था। तो अब कैसे रहेंगे इधर इधर तो सब काम करने पड़ेगा, तो कैसे हम सुबह से आदत नहीं था इतने सुबह में उठने के लिए, काम भी आदत नहीं था। तो फिर आ गया है धीरे धीरे से वो सब आदत आ गया, तो फिर अच्छा लग रहा है इधर। तो पहले की बनीता, 1 महीने पहले की बनीता और आज की बनीता में अगर फर्क है, वो क्लियर कट किसी को देखना है तो वो क्या है? और ये मेरे में चेंजेस बहुत आए हैं, क्योंकि मैं राइटिंग में थोड़ा पूरा, जब लॉकडाउन हुआ था राइटिंग में लिख रहे थे आगे पहले से, तो राइटिंग मेरा पूरा बंद हो गया था, क्योंकि मेरा पढ़ाई लिखाई पूरा बंद कर दिए थे। तो मैं भी एलआई कर रही हूँ। ग्रेजुएशन के बाद मुझे ऐसे लगा कि समाज में कुछ पढ़ी लिखी हूँ तो समाज को कुछ जानकारी मिलेगा। फिर मुझे सोचने लगे जे महिला लोग बिजनेस करना ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग को नौकरी नहीं मिलता है गवर्नमेंट की नौकरी। तो प्राइवेट नौकरी भी हम किए थे एक प्राइवेट स्कूल में, जो अभी रिसेंट 2 महीना हुआ है हम छोड़ दिए हैं। उसके मैनेजमेंट मैनेजर थी, तो वहाँ से बहुत कास्टिज्म के मतलब मेरे से हुआ। मैं भी 6-7 लड़की को वहाँ पे स्टाफ किए थे, तो उनको भी बहुत कास्टिज्म के बारे में हम लोग को पैसा भी नहीं मिला। जैसे हमको 45,000 के दे रहे थे महीना, तो हमारा महीना भी उधर रुक दिया। तो हम बहुत मतलब जैसे कास्टिज्म, जैसे डिस्क्रिमिनेशन हुआ हमारे साथ, हम नौकरी भी छोड़ दिया। इसीलिए हम सोचा खुद के महीने से हम खुद कैसे कमाएंगे और समाज को कैसे जानकारी देंगे। जे हम खुद कमा रहे हैं तो आप लोग भी, महिला लोग घर में बैठ के कैसे पैसा कमा सकते हैं, कैसे आगे बढ़ सकते हैं। इसीलिए मैंने चूज़ किया है। जब डीएसके में आया था तो कंप्यूटर में मैंने इंटरव्यू दिया था कंप्यूटर में, तो मुझे फिर सोचने लगा कि कंप्यूटर मेरे लिए जितने भी काम देगा तो सिलाई उनसे और ज़्यादा काम देगा। तो मेरा सोचना वो फिर सिलाई में आ गए। तो इधर आगे अभी सोच रही हूँ जो उड़ीसा जाऊँगी तो अपने से एक सेंटर भी हम खुलेंगे डीएसके के साथ में रह के, कैसे हम सेंटर एक बनाएंगे और महिला को हमारे साथ जुड़ाएंगे। जो महिला लोग गरीब लोग हैं, जैसे महिला सोचते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन महिला सब कुछ कर सकते हैं। बिजनेस जैसे महिला सोचते हैं हम लोग बिजनेस नहीं कर पाएंगे, तो खाली बड़े बड़े लोग कर पाएंगे, नहीं वैसे नहीं है। वो सब मतलब दिमाग से हटाना चाहिए, क्योंकि हम लोग बिजनेस से बहुत बड़ा बड़ा बिजनेस कर पाएंगे। सिलाई सीखेंगे तो ब्लाउज, साया, ड्रेस हम भी कंपनी खोल सकते हैं। छोटे से लोग बड़े होते हैं, ये सोच विचार तो हम लिए हैं इधर आके। तो और क्या अच्छा लगा? ये तो हो गई क्लास की बात। और अच्छा लगा सबसे बड़ा कि मतलब जैसे लॉ के जानकारी मिल रहे हैं, कैसे हम लोग का अधिकार है, महिला के अधिकार है। हम लोग कैसे गांव में जाके महिला को समझाएंगे कि आपका अधिकार जो है वो अधिकार कैसे आप ले सकते हैं। किसी के साथ में भी घटना घटे, हम लोग खड़े होना चाहिए कि महिला लोग का, हर महिला के अधिकार है, जीने का अधिकार है। जिन्हें कोई भी छीन लेता है तो उनसे छीन के लाओ। और जानकारी मिला है हम लोग को, रोज लिखना वो बहुत बड़े बात है, क्योंकि पढ़ा लिखा हम जितने करेंगे उतने बढ़ेंगे। तो हम भी, हमारे जो सहेली लोग हैं हमें वही बोलते हैं उनको जाके हॉस्टल में, आप जितने पढ़े लिखे होगे तो उतने ही आप लोग को आगे बढ़ सकते हो। और बहुत बड़ा है कि रोज राइटिंग, मतलब राइटिंग किसी का अच्छा नहीं होता है, तो राइटिंग इधर से हम लोग जो टाइम मिलता है 1 घंटा है, आधा घंटा है, हम राइटिंग जितने स्पीड करेंगे उतने जल्दी भी हम कुछ भी कर सकते। और राइटिंग लिखने से कुछ भी याद आती है, समाज के हो क्या, देश जैसे हमारे बीच में जैसे हो रहा है देश में, हम लोग का जानकारी आ जाती है, याद आती है कि हमको ये भी लिखना है, समाज में ये घटना घट रही है। आप डीएसके में आने से खुश है? बहुत खुश है।
आगे से तो बहुत नहीं थी, लेकिन अभी बहुत खुश हूँ। और फिर जाऊंगी तो डीएस के तो कुछ देना ही पड़ेगा, क्योंकि हम आए हैं तो डीएस के स्टूडेंट बन के, तो फिर हमको ऐसे जानकारी देंगे तो और भी कोई भी सीखने आ जाएगा इधर, तो समाज थोड़ा, हमारे महिला समाज जो जितने पीछे हैं थोड़े आगे आ जाएंगे, वो जानकारी हम ले रहे हैं। और अच्छा लगा सबसे, क्योंकि हम लोग खाना टाइम पे नहीं खाते हैं। और जैसे हम लोग का तबीयत, मेरा तबीयत बहुत ख़राब था, लेकिन क्या बोलूँ, गैस तो इतना हो रहा था, मैं ऐसे ऐसे हर टाइम सोने के मन करता है। अभी तो इतना एक्टिव हो गया हूँ, गैस मेरा बिल्कुल भी नहीं है। जो गैस के वजह से हम समाज में भी काम करने के जा रहे थे तो मुझे बहुत दिक्कत आ रहा था, इधर गैस घुस गया तो जलन कैसे कैसे हो रहा था, तबीयत भी अच्छा नहीं। अभी गैस पूरा छूट गया है। डीएसके ने भगा भगा के आपको ठीक कर दिया है। और दवा तो मैं कभी नहीं ली थी, कबड्डी खेल के तो मेरा एक अंगूठी फिंगर ने पूरा खराब हो गया, लेकिन मैं दवा अभी तक नहीं ले रहा हूँ। मतलब तकलीफ हो रहा है, पेन भी हो रहा है, वो पेन को हम खुद से, मेरा मन से ही उनको हटाया है। रात को पेन होता है, लेकिन थोड़ा तेल लगा के उसको मसाज करके सोती हूँ, फिर उठ जाती हूँ तो फिर वैसे ही करती हूँ। उससे भी आदत पड़ गए है दवा खाने के, वो भी छूट गया है। थैंक यू। ओके, तो ये हमारा सिलाई क्लास है, और सिलाई क्लास में स्पेशली ब्लाउज़ के लिए मास्टर बनाए जाते हैं। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी लोगों ने बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया है। मेरे को पहले ऐसे लग रहा था, लेकिन ये डिज़ाइन नहीं है, ये क्या है? सैंपल है। सैंपल है गाज बटन के। और यहाँ पर सभी लोगों ने कितने कितने ब्लाउज सिले हैं बताएंगे? 5 तो 5 हर एक को ब्लाउज सिलने होते हैं। और आपने क्या किया है चौधरायन, बताइए। ये गाज मतलब बटन लगाया है, हाँ, ये हुक ये लगाए हैं, हुक किए हैं, बढ़िया से हुक देखिए कितना एकदम लाइन से। ओके, ये हुक वो गाज। गाज है, ओके, ये हुक की मतलब बटन की गाज है ये। हम्म। और ये सारी डिज़ाइन है, हाँ, जिगजैग और सारे ये डिजाइन सब। है ओके, दीदी। ठीक है। तो बहुत सारे सैंपल हम देख सकते हैं, वो हर एक को बनाने होते हैं सैंपल। और यहाँ पर कुछ लोग हैं जिनका कोर्स ख़त्म होना है, तो उन्होंने ब्लाउज़ यहाँ पर बनाया। कैसा लग रहा है प्रतिभा? आपको खास करके पूछ रही हूँ, ब्लाउज़ आ गया कि नहीं आया? पहले सच बताओ। आ गया? अब घर जाके भूल तो नहीं जाओगे? नहीं भूलोगे। तो ये प्रतिभा है, वो थोड़े पीछे थे, लेकिन अभी उनका ब्लाउज़ हम देख सकते हैं। ये आपने बनाया है? ओके। और यहाँ पर है आरती, તમે बताओ કેવું લાગ્યું ડીએસકે માં આવીને? બહુ સારું લાગ્યું, બહુ ઘણું બધું નવું જાણવા મળ્યું. અહીંયા કોઈ ઊંચું નથી, કોઈ નીચું નથી, બધા એક જ સમાન. જે મોટા હોય તે ભલે નાના હોય તે ભલે બધાને દીદી કહીને જ બોલાવવાનું. ઘણા જગ્યાએ એવું હોય છે મોટા હોય એટલે માન દેવાનું, પણ એવું કશું નહીં, બસ દીદી કેવો એટલે બધું આવી ગયું. અચ્છા, તો એ ગમ્યું આપને. હા. અને બાકીની શું આ બધી ઘણી બધી એક્ટિવિટી થતી હોય ને, તો એમાં શું ગમ્યું? એમાં જે બધું ઘરકામ શીખડાવે, ઘણી જગ્યાએ હોય છે જે કામથી આવ્યા હોય એ જ કામ કરાવે, પણ અહીંયા કણે તો જે આવ્યા છે એના સિવાયનું ઘણું છે, જાણવાય મળે અને શીખડાવે છે. તેમાં કાનૂનની જાણકારી જે મને આજ લગી ક્યાંય નહોતી, પણ હવે અહીંયા ડીએસકેમાં આવ્યા પછી મળી છે, જેમાં 154ની કલમથી આપણે એફઆઈઆર નોંધાવી શકીએ. પછી એફઆઈઆર નોંધતા હોય તો પછી આપણે એના ઉપરના પોલીસના જે અધિકારી હોય એમને પણ એફઆઈઆર લખી શકીએ. 103 કલમ 154 કલમ રહી, એમાં આપણે ઉપરના અધિકારીને પણ મોકલી શકીએ. એવી બધી જાણકારી કાનૂન વિશેની અહીંયા આવી. તો પોલીસ સ્ટેશનમાં જવામાં બીક નહીં લાગે હવે? ના, બિલકુલ નહીં. બિલકુલ નહીં. ઓકે ઓકે. आप कहाँ से हो? पश्चिम बंगाल से। यहाँ पे क्या कर रहे हो? यहाँ पे सिलाई करने आए हैं। नाम क्या है आपका? बिलासी। बिलासी। तो बिलासी, आप यहाँ पे शायद आपको 1 महीना पूर्ण हुआ? नहीं हुआ है, मतलब 15 तारीख को हो जाएगा। अच्छा, 15 तारीख को होगा। तो आपने क्या क्या बनाया है? पहले ये बटन लगाया है, उसके बाद गाज, हुक, उसके बाद हुक, उसके बाद आई। ये आई है। ओके, ये हाथ से बनी हुई है। बढ़िया बना है, बढ़िया बना है। और
ये है चाप की सिलाई, ये है धारी सिलाई। ओके, तो ये आपकी फाइल है? हाँ अच्छा, फाइल में भी आप सैंपल रखते हैं सारे? हाँ। ओके ओके, तो ये सब आप जब शुरुआत में आए हाँ, तो पहले कागज ओके में। ओके, फिर गोल बनाना। ओके ठीक है, तो आपको एक किताब भी देते हैं यहाँ से? हाँ, ओके, वो किसके लिए होती है? वो किताब जैसे कि पढ़ के हम समझे और मतलब कि उसमें समझ में आए कि कैसे ब्लाउज कटिंग करना है, कैसे नहीं नाप वगैरह होता है। तो आप बंगाल से है कि झारखंड से है? बंगाल से। बंगाल से। हाँ। तो बंगाल से इधर तक इतना लंबा होने की क्या ज़रूरत पड़ी? इधर तक मतलब सिलाई तो हमारे वहाँ भी होता है सिलाई, लेकिन यहाँ पे आए हैं क्योंकि और कुछ यहाँ सीखने को मिलता है नया नया। जैसे घर में हम लोग जैसे कि घर में छुआछूत जैसा होता है वगैरह वगैरह होता है, और यहाँ पे वैसा कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जैसे कि मंगलवार को शिविर होता है, तो शिविर में हम लोगों को